سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس آن لائن ٹیکسی سروسز کے لیے ایک ہی نظام لانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم۔ ای وی ٹیکسی لانچ کرنے کے لیے بھی اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس ہوا ہے۔ آن لائن ٹیکسی سروسز کے لیے ایک ہی نظام لانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم کیا گیا ہے۔ ای وی ٹیکسی لانچ کرنے کے لیے بھی اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس آن لائن ٹیکسی سروسز کے لیے ایک ہی نظام لانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم۔ ای وی ٹیکسی لانچ کرنے کے لیے بھی اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس ہوا ہے۔ آن لائن ٹیکسی سروسز کے لیے ایک ہی نظام لانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم۔ ای وی ٹیکسی لانچ کرنے کے لیے بھی اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے کراچی میں چلنے والی تمام آن لائن ٹیکسی سروسز کے لیے ایک ہی نظام لانے اور ای وی ٹیکسی لانچ کرنے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس ہوا ہے۔ آن لائن ٹیکسی سروسز کے لیے ایک ہی نظام لانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم۔ ای وی ٹیکسی لانچ کرنے کے لیے بھی اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس آن لائن ٹیکسی سروسز کے لیے بھی ایک نظام لانے کا اقدام کیا گیا ہے۔ ای وی ٹیکسی لانچ کرنے کے لیے بھی اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ کہتے ہیں مویشی منڈی آنے والوں کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کریں گے۔ گلشن معمار ناردرن بائی پاس سمیت تمام راستوں پر سیکیورٹی ہوگی۔ 1000 سے زائد اہلکار مامور کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں سلمان سلیم سے۔ جی سلمان، بتائیے گا۔ دیکھیں، بالکل اس وقت ہم مویشی منڈی میں موجود ہیں اور یہاں پر سیکورٹی اقدامات کے لیے آج ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ کی جانب سے یہاں کا دورہ کیا گیا۔ ان کے ساتھ ایس ایس پی ویسٹ طارق لائی مسروئی بھی موجود تھے اور تمام تر سیکورٹی صورتحال کو جو ہے وہ دیکھا گیا۔ مزید کتنی سیکورٹی بڑھا رہے ہیں اور کتنی مزید سیکورٹی ڈپلوائی کی جائے گی، یہ جاننے کے لیے ڈی آئی جی ویسٹ موجود ہے۔ عرفان صاحب، بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ ہر سال جو ہے وہ منڈی یہاں پہ لگتی ہے، اس سال کیا مختلف چیز دیکھ رہے ہیں اور سیکورٹی کی تعداد جو ہے وہ کتنی بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی منڈی ہے اور اس کے سیکیور کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا آرڈنری ہم میجرس لیتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے ایسے ہی کیا تھا اور وہ بڑا ہی سکسیزفل ہمارا پلان تھا۔ اس بار بھی ہم اس کو اور زیادہ امپروو کرنے جا رہے ہیں۔ 1000 سے زیادہ ہم نفری یہاں پہ لگائیں گے اور جو منڈی اور یعنی کہ اس میں امپروو آئے گی، جب جانور بہت زیادہ آ جائیں گے تو ہم پولیس کے کمانڈوز بھی یہاں پہ ڈپلائی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ رینجرز بھی ہوگی۔ جو گرد نواح کے علاقے ہیں وہاں پہ ہم سرچ آپریشنز بھی کر رہے ہیں اور جو سڑکیں یہاں پہ لیڈ کر رہی ہیں اس منڈی کو، وہاں پہ بھی ہم اپنی ڈپلائمنٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ شہریوں کی جانب سے ایک شکایت موصول ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ چھینا جھپٹی کی وارداتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ ناردرن بائی پاس ہو یا وہ معمار کی طرف سے آئیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے شاہین فورس وغیرہ کی کیا تعداد جو ہے وہ رکھی ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پکٹس آپ کی لگی ہوئی ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ کے اوپر، وہاں پر وارداتیں عموماً نہیں ہوتی ہیں ایسے موقعوں کے اوپر، لیکن جو اندرون علاقے ہیں وہاں پر تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی، پچھلی دفعہ تو منڈی سے ریلیٹڈ کوئی بھی واردات نہیں ہوئی تھی۔ ایک پورے مہینے میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی اللہ کا شکر ہے واردات نہیں ہوئی تھی۔ اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم نے موٹر سائیکلس بھی اس وقت رکھی تھی، نہ صرف یہ کہ بلکہ ہم دوسرے جو میرے ڈسٹرکٹس ہیں، جو جس طرح سینٹرل ہے، آگے پھر ایسٹ ہے، ان کی بھی پولیس کو ہم نے ڈپلائی کیا تھا۔ تو اس بار بھی ہم نے اس طرح یہی کیا ہے کہ دن کو، شام کو، رات کو ہم نے ڈی ایس پیز کی ایک پوری ایک ڈپلائمنٹ کی ہے جو یہاں پہ ہر ایک بندے کو چیک کرے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ دیکھیں، بالکل ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ تمام تر سیکورٹی اقدامات سے جو ہے وہ آگاہ کر رہے تھے۔ ساتھ ہی 1000 سے زائد پولیس اہلکار اس مویشی منڈی کے اطراف جو ہے وہ تعینات کیے جائیں گے۔ 40 سے زائد پکٹس لگائی جائیں گی اور شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے تمام تر اقدامات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ جی، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد سے کراچی واپسی پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ جیالوں نے نعرے بازی اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دریائے سندھ پر کنالوں کا معاملہ اب ختم ہو چکا ہے۔ وکلاء سے دھرنے ختم کرنے کی اپیل کر دی۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں جانیے۔
सिंध के अवाम की जीत, न लाशें गिरी न हक मारा गया। वजीर आला कहते हैं कैनाल मंसूबा खत्म हो चुका, अब धरने भी खत्म किए जाएं। कराची एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के इस्तकबाल के लिए पीपल्स पार्टी के कारकुनों, वुज़रा और अरकान असेंबली की बड़ी तादाद मौजूद थी। कारकुन पार्टी के झंडे लहराते रहे और जोश और खरोश से नारे लगाते रहे। वजीर आला सिंध को वुज़रा और पार्टी रहनुमाओं ने फूलों के हार पहनाए। इस्तकबाल के बाद जुलूस की सूरत में वजीर आला सिंध को बाहर लाया गया, जहां कारकुनों ने पुरजोश अंदाज में नारेबाजी की। मुराद अली शाह ने कहा कि दरियाए सिंध पर कैनालों का मंसूबा खत्म हो चुका है। ये सिंध हुकूमत और अवाम की बड़ी कामयाबी है। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, पूरे सिंध के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मंसूबा जिसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म में, जो मंसूबा आपने कल देखा होगा जब इनामिया निकले और वो CCI के रेट निकले तो कैंसिल किया हुआ है, कैंसिल हुआ है। वज़ीर आला सिंध बोले कुछ अनासिर नहीं चाहते थे कि मसला खुश उसलूबी से हल हो, वही लोग सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भी बेबुनियाद प्रोपेगंडा करते रहे। वकला मुतालबा कर रहे थे कि या नोटिफिकेशन दें या लाशें गिरती देखें। हमने लाशें गिरने नहीं दी, हमने नोटिफिकेशन दे दिया, अब धरने खत्म किए जाएं। ये वही लोग हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। अरे भाई, अकल के अंदर कोई सदर, कोई वजीर आजम दस्तखत नहीं करता, सारे फोरम होते हैं। एक बात करें, कहते थे हमारी लाशें जाएंगी या नोटिफिकेशन आएगा। हमने लाशें नहीं जाने दी, हम नोटिफिकेशन लाए। तो मैं आपसे, मैंने असेंबली के फ्लोर पे कहा था, मैंने कई बार प्रेस ब्रीफिंग्स में कहा कि ये कनाल नहीं बनेंगे, मेरी गारंटी है। मेरी गारंटी मुराद अली शाह की गारंटी नहीं, मेरी गारंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गारंटी है, मेरी गारंटी बिलावल भुट्टो जरदारी की गारंटी है। इस्तकबाल के बाद वज़ीर आला सिंध का काफिला एयरपोर्ट से वज़ीर आला हाउस रवाना हुआ, जहां कारकुनान ने उनका भरपूर खैर मकदम किया। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। लियाकताबाद नंबर 10 पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के बावजूद इंतज़ामिया इसका मुस्तकिल हल निकालने में नाकाम। सड़कों पर ताहाल गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड, कमर्शियल गाड़ियों की पार्किंग कायम, फुटपाथों और मोनूमेंट के अतराफ तहद्दे निगाह ठेले पथारे मौजूद हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। फ्री कॉरिडोर 1, शाहराह पाकिस्तान, सर शाह सुलेमान रोड और शाहराह हकीम इब्ने सीना को बाहम जोड़ने वाला लियाकताबाद नंबर 10 का चौराहा तजावुजात के नरगे में। यहाँ गैर कानूनी रक्षा स्टैंड और कमर्शियल गाड़ियों की पार्किंग, ठेले पधारों की भरमार, शहरियों का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। भाई ये जो है ना रक्षा वाले जो है रक्षा स्टैंड बनाया हुआ है, इन्होंने ये जो है सिटी गवर्नमेंट की जगह पे भी पार्किंग बनाई हुई है, यहाँ भी बनाई हुई है। और जो है ना रोड छोटा हो गया, यहाँ से ट्रेले घूमते हैं, हादसे होते हैं, बड़े मसले मसाइल होते हैं और शाम में जो है सब्जी और फ्रूट के ठेले लग जाते हैं। इस वजह से जो है ना बड़े मामला जो है खराब है ट्रैफिक के हवाले से, शाम में बहुत रश होता है। शहरियों ने शिकवा किया, तजावुजात की भरमार से हादसात और ट्रैफिक जाम मामूल हैं। सूरत हाल का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। और इन्होंने कोई चौक नहीं छोड़ा कराची का जिसपे ये रश करके नहीं खड़े होते। इनको बोलो भी तो बोलते हम भत्ता दे रहे हैं, शाम को इधर फ्रूट के ठेले लग जाते हैं। इनको बोलो गाड़ियों के लिए रास्ता छोड़ो तो वो भी अकड़ते हैं। भत्ता खोरी चल रही है सब जगह। ये कोई काम है? यहाँ इंसान गरीब आदमी कोई अस्पताल लेके जा रहा हो तो रास्ते में ही दम दे दे। शहरी और जिलाई इंतजामिया दर्जनों बार कार्रवाई के बावजूद लियाकताबाद नंबर 10 से तजावुजात का मुस्तकिल खात्मा करने में नाकाम है। कैमरामैन इमरान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। न्यू कराची टाउन के शोबा तालीम में अनोखा फैसला सामने आ गया, जहां असातिज़ा को टाइम स्केल दिए जाने के 1 साल बाद वापस लेने का ऐलान कर दिया। असातिज़ा ने खिलाफ कानून करार देते हुए फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। न्यू कराची टाउन इंतजामिया का शोबा तालीम के असातिज़ा के साथ मजाक। 150 असातिज़ा को 15 बरस बाद मिलने वाले टाइम स्केल को वापस लेने का मंसूबा बना लिया। मुतासिरा टीचर्स ने मंसूबे को साजिश करार दिया। बोले ये मेरिट का कत्ल और अपनों को नवाजने का शाखसाना है। गुज़िश्ता 1 साल से हम लोगों का टाइम स्केल हम लोग
मतलब हमें दिया गया है। अब ये अचानक ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई कि ये वापस लेने की बातें करें, जबकि ये कोर्ट का ऑर्डर है। ये बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात है और हम लोग मेंटली बहुत इस बात से अपसेट हैं। तो ये हमारा हक है, जायज़ हक है हमारा, जो इतने सालों से हमें नहीं मिला था। तकरीबन 34 साल मेरी सर्विस को हो गए और मेरा भी रिटायरमेंट करीब है। अब इतने अरसे के अंदर अगर अब ये टाइम स्केल हमें मिला है तो हमारा जायज़ हक था, लेकिन अगर ये अब रिवर्ट किया जा रहा है तो ये तो हमारे लिए सरासर हमारे लिए जो है ज़्यादती का सबब है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चेयरमैन वली वारसी बोले, टाइम स्केल की वापसी किसी सूरत नहीं होने देंगे। चेयरमैन न्यू कराची टाउन 1 साल चेक्स पर दस्तखत करते रहे, अब इन्हें कैसे ख्याल आ गया कि ये गलत काम हो रहा है। किसी को 10 महीने, किसी को 1 साल से ये तनख्वाह में इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो चेयरमैन साहब 10 महीने तक और 1 साल तक जो है वो दस्तखत करते रहे, और 10 महीने और साल के बाद उनको ख्याल आ रहा है कि ये गैर कानूनी तौर पर हुआ। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे यकीनन ऐसा है कि इनको रिवर्ट करके फिर अपने मनपसंद अफराद को भर्ती किया जाएगा। इधर बास असातिज़ा ने टाइम स्केल की मुमकिना वापसी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी। कैमरामैन इमरान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। पहलगाम वाक़े के बाद भारत आपे से बाहर हो गया। कराची के माजूर नौजवान को इलाज से महरूम कर दिया। मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी नौजवान इलाज के लिए भारत गया, लेकिन उसे वापस भेज दिया गया। भारतीय हुकाम ने नौजवान की वालिदा को भारत में ही रोक लिया। नौजवान के अहल खाना नई मुश्किल में फंस गए। कराची से अनुषा जाफरी की रिपोर्ट में देखिए। भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया। मोदी हुकूमत का एक और इंसानियत सोच इक़दाम। इलाज के लिए जाने वाले पाकिस्तान नौजवान को बगैर इलाज वापस भेज दिया। 17 सालायान 2 साल कबल मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में जख्मी होकर माजूर हो गया था। अहले खाना ने बताया कि 17 सालायान 2 साल कबल जाली पुलिस मुकाबले में जख्मी होकर माजूर हो गया था। अहले खाना ने बताया कि अयान वालिदैन के हमरा गुज़िश्ता माह 25 मार्च को कराची से भारत गया और 27 मार्च को अटारी बॉर्डर अबूर किया। नौजवान दिल्ली के अस्पताल में ज़ेर इलाज था। भारतीय हुकाम की सरहदों की बंदिश के ऐलान के साथ ही माजूर नौजवान को इलाज मुकम्मल किए बगैर ही पाकिस्तान भेज दिया गया। ताहम नौजवान की वालदा को जबरी तौर पर भारत में ही रोक लिया गया। माजूर नौजवान के वालिद इमरान ने बताया कि मेरी अहलिया को भारतीय नेशनल पर होने पर रोक लिया गया और मेरी वाइफ है इंडियन नेशनल। मैंने बोला या तो भाई हम एक साथ आए थे, एक साथ ही हमें भेजें। कह रहे इंडियन नेशनल जो है वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती, तो कह रहे इनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, वो जा नहीं सकती। तो क्या अपील करेंगे बाप? मेरी यही गुजारिश है कि इंडियन गवर्नमेंट से भी, मोदी सरकार से भी और शहबाज शरीफ साहब से भी कि बॉर्डर को खोला जाए। जो ऐसी फैमिलियाँ इधर भी गई हुई हैं, उधर भी गई हुई, शादियाँ हुई हैं, उन लड़कियों को अपने अपने रिश्तेदारों से, अपने जो बच्चे हैं उनसे जल्द से जल्द मिलवाएं। इधर माजूर नौजवान ने भारत और पाकिस्तान हुकूमत से इलाज की अपील कर दी। हुकूमत से यही करेंगे कि जल्द से जल्द बॉर्डर खोल दिया जाए, हमारी माँ को हमसे मिला दिया जाए। इंडियन नेशनलिटी थी उनकी, तो उनको वहीं रोक लिया, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती, वो इंडियन पासपोर्ट था। हमारा पाकिस्तानी था तो हमें यूँ भेज दिया गया है। नौजवान की वालदा को भारतीय पासपोर्ट की वजह से रोका गया है क्योंकि वो भारतीय पासपोर्ट पर वीज़ा हासिल करके 18 साल से कराची में मुकीम थी। माजूर नौजवान ने मुतालिका हुकाम से वालदा की वापसी की भी अपील की है। अनुषा जाफरी, 24 न्यूज़, कराची। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए रेलवे हसन नवाज की सरबराही में इजलास मुनक्किद किया गया। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए रेलवे हसन नवाज कहते हैं रेलवे के सैकड़ों एकड़ रकबे पर सूबों के साथ तनाज़ा है। तजवीज़ दी है मामले को जल्द हल किया जाए। 16 अरब रुपए की रकम पेंशन और ग्रेजुएटी के लिए 65 अरब रुपए है। रेलवे मुलाजमीन की पेंशन की अदायगी बड़ा मसला है। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट में देखिए। कराची में चेयरमैन कायमा कमेटी बराए रेलवे हसन नवाज की सरबराही में 21 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी का इजलास हुआ। कराची डिवीजन समेत दीगर डिवीजन में तजावुज़ात के खात्मे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट तलब की गई। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन कायमा कमेटी हसन नवाज बोले, कराची से हैदराबाद तक स्पेशल ट्रेन चलाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक हुआ है। रेलवे ट्रैक और सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। ML1 के काम से पहले ट्रैक को बेहतर किया जाएगा। कराची से हैदराबाद के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने की बात भी हुई। आज कमेटी ने रिकमेंड किया है कि कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए ताकि यहाँ के जो कराची से लोग या हैदराबाद से लोग काम के लिए आते हैं उन्हें सहूलत मिल सके। हसन नवाज ने कहा रेलवे की आमदनी बढ़ाने के लिए फ्रेट ट्रेन के 8% हिस्से को मजीद बढ़ाएंगे। फ्रेट ट्रेन की तादाद में इजाफा गेम चेंजर होगा। ये थल का जो मनसूबा बन रहा है ये बड़ा गेम चेंजर होगा और उसमें मेंबरान ने ये अपना कंसर्न शो किया है कि जो फ्रेट ट्रेन का जो परसेंटेज पूरी दुनिया में 20-25% होती है, हमारे सिर्फ 8% हमारा फ्रेट ट्रेन ले रही हैं, बाकी 92% जो है वो
प्राइवेट सेक्टर के पास है। चेयरमैन कायमा कमेटी ने मजीद कहा कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की यही सोच है कि रेलवे को बेहतर किया जाए। सबसे बड़ा इशू रिटायर्ड मुलाजमिन की पेंशन का है। जो ग्रांट रेलवे को हुकूमत की जानिब से मिलती है, इसमें से पेंशन दी जाती है। हमने फैसला किया है कि पेंशन की रकम को अलहदा फराहम किया जाए ताकि रेलवे पर भी बोझ कम हो सके। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अक्सा शाइस्ती, 21। साइट एरिया गनी चुरंगी रेलवे फाटक के करीब झाड़ियों से मिलने वाला इंसानी ढांचा मुअम्मा बन गया। इंस्पेक्टर सजाद खान कहते हैं कि डीएनए के लिए नमूने लिए गए हैं। डीएनए रिपोर्ट के बाद ही तमाम हकाइक सामने आएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, ज़िले की माड़ी साइड बी थाने की हदूद के अंदर गनी चौरंगी के करीब जो है वो केसीआर की रेलवे ट्रैक जो है गुजर रही है। उसके बिल्कुल बराबर में झाड़ियाँ और झाड़ियों के साथ जो है वो केसीआर को ऑपरेट करने के लिए जो रेलवे के कमरे बनाए जाते हैं, उन कमरे से जो है वो एक लाश मिली। लाश नहीं थी बल्कि वो ढांचा था, और इंसानी ढांचा जो है उसे फौरी तौर पर पुलिस को जब इत्तला मिली तो रेस्क्यू की मदद से जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया। आखिर ढांचा किसका था, कैसे वहाँ पहुँचा और अब तक की क्या पेशरफ्त हुई, इस हवाले से जानते हैं। हमारे साथ इंस्पेक्टर सज्जाद खटक मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। साइड बी के SHO हैं। सर साहब, मुझे बताइएगा, क्या आखिर कोई मर्द था, खातून थी, कोई इसे वहाँ लाकर दबाया गया था? अब तक की क्या पेशरफ्त है और इसके मेडिकल टेस्ट ले लिए गए? जी बिल्कुल, ये कल तकरीबन 5 बजे करीब हमें इतला मिली कि ये जो फाटक है गनी चुरंगी के पास है, इसके ऊपर रेलवे का जो एरिया बनता है, उसमें एक कमरा है जो कि पहले के दौर पे यूज़ होते थे, रेलवे के हिसाब से रेलवे लोग करते थे। उसमें से कोई ढांचा वगैरह, इंसानी ढांचा वगैरह मिला है, जिस पर हमने वहाँ पे प्रोसीड किया। तो मालूमात ये हुई कि ये एक कमरा था जो कि गैर इस्तेमाल शुदा था। वहाँ पे करीब कुछ सब्ज़ी वगैरह वाले खड़े होते थे, तो वो उन्होंने ये समझा कि यार ये खुद को खाली करा लेते हैं, कचरा वगैरह हटा के उसको यूज़ करते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। जब उन्होंने वहाँ से कचरा निकाला, खाली किया उस कमरे को, तो उसमें से इंसानी ढांचा बरामद हुआ। तो सर-ए-दस्त जो एग्जामिनेशन से डॉक्टरों ने हमें बतलाया कि यार ये कोई 45 ईयर ओल्ड कोई लेडी है या जेंट्स है, लेकिन इस्तेमाल ये है कि कोई मर्द है। चूँकि ये पसलियाँ 13 इसकी रिब्स हैं, तो ये ज़्यादा है कि शायद ये मर्द हो। लेकिन अब तक की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो 45 साल उसकी उम्र ज़ाहिर की गई है, और मर्द का शुबा है कि मर्द की बॉडी, इसलिए कि उसकी जो हड्डियां हैं वो पसलियां वो 13 हैं और मुकम्मल ढांचा है, जिसे अब मुकम्मल तफ्तीश के लिए अमानतन तौर पर जो है वो ईदी सर्द खाने रखवाया गया, और इसके हवाले से पुलिस जो है वो मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। जी, मकामी होटल में कोटरा और जनूबी कोरियन सिफारत खाने के ताउन से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। सरबराह कराची इकनॉमिक डिप्लोमेसी फोरम फारूक अफजल कहते हैं जनूबी कोरिया पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। सनती ताउन से दोनों ममालिक में इक्तसादी खुशहाली की नई राहें हमवार कर सकते हैं। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में देखिए। दोस्ती से आगे अब सनती तरक्की का नया सफर। कोरिया और पाकिस्तान मईशत के मैदान में साथ साथ। कराची में कोटरा और कोरियन सफारत खाने के इश्तराक से कोरिया पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन 2025 के उन्वान से एक पुरवकार तकरीब सजाई गई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान सनती ताउन के फरोग पर जोर दिया गया। तकरीब में सरकारी हुकाम, मारूफ सनतकार, कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शरीक थे, जिन्होंने मुश्तरका तरक्की के इम्कानात पर इज़हार ख्याल किया। कराची इकनॉमिक डिप्लोमेसी फोरम के सरबराह फारूक अफजल का कहना था कि कोरिया पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, हमें सनती सरमायाकारी को फरोग देना होगा। कोरियन सरमायाकारों को महफूज मौके फराहम करने होंगे ताकि मुल्क इक्तिसादी तौर पर मुस्तहकम हो सके। सेकेंडली, टेक्सटाइल में देखें, पाकिस्तान हालांकि चौथा बड़ा मुल्क है टेक्सटाइल का, कॉटन प्रोड्यूसिंग का, लेकिन हमारा स्टिल हम $1.2 बिलियन पर ईयर लूज़ करते हैं आउटडेटेड मशीनरी की वजह से। अगर हम कोरिया की AI पावर्ड जो लूम्स हैं और प्लस पाकिस्तान की कॉटन, तो ये एक इतना बड़ा अलायंस होगा हमारा कि हम दुनिया भर में एक बहुत ही यूनिक किस्म का अलायंस करके हम अपनी उसको बेहतर कर सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर से वाबस्ता माहिरीन बोले कि कोरिया ने ऑटोमोबाइल और तिब्बी आलात के शोबे में दुनिया भर में मकाम बनाया है और पाकिस्तान इन शोबों में बाहिमी ताउन से फ़ायदा उठा सकता है। अब हम कोशिश अब ये कर रहे हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान में इंपोर्ट अपनी जगह है और ज़रूर है, मगर हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी देखना है। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि अब हम कोरियन पार्टनरशिप के साथ हम इसको और एक लेवल पे लेके जाएं, जहाँ जॉइंट वेंचर्स हों, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो। देखें, तरक्की के हवाले से कोरिया ने तो अपना लोहा दुनिया में मनवाया हुआ है।
جیسے میں نے اندر اپنی پریزنٹیشن میں بھی کہا کہ اٹ از ون آف دا 4 ایشین ٹائگرز، اور مانا ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں کولیبریشن کی بات آتی ہے تو کوریا کین بی اے ویری بگ اینڈ گڈ اسٹریٹجک پارٹنر. تقریب میں آٹوموٹیو، ہیلتھ کیئر، آئی ٹی اور دیگر صنعتی شعبوں میں ممکنہ اشتراک اور ترقی کی راہیں تلاش کی گئیں. کورین سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ پاکستانی صنعت کاروں کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرہ مین تابش کے ساتھ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21. آج سونے کی بڑھتی ہوئی درآمد پر بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ $3.25 کروڑ امریکی ڈالر صرف سونے کی درآمد پر خرچ ہو گئے. غیر یقینی عالمی حالات میں سونا ایک بار پھر پاکستانی سرمایہ کاروں کی پہلی ترجیح بن گیا. ادارہ شماریات نے سونے کی درآمد پر تازہ ترین رپورٹ جاری کر دی. اشرف خان کی رپورٹ میں دیکھیے. غیر یقینی عالمی حالات میں سونا ایک بار پھر موٹی کمائی کا ذریعہ بن گیا. عالمی منڈی میں قیمت میں اضافے کے باوجود پاکستان میں درآمد بڑھنے لگی. ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق غیر یقینی معاشی اور سیاسی صورتحال نے سونے کو ایک بار پھر محفوظ سرمایہ کاری کا ذریعہ بنا دیا ہے. رواں مالی سال کے ابتدائی 9 ماہ میں پاکستان نے 368 کلو گرام سونا درآمد کیا، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں 262 کلو گرام سے 40% زائد ہے. گزشتہ سال 9 ماہ میں سونے کی درآمد پر $1.70 کروڑ خرچ کیے گئے تھے، جبکہ رواں سال اسی مدت میں خرچ کی گئی رقم $2.83 کروڑ تک جا پہنچی، جو گزشتہ اسی مدت سے 66% زائد ہے. نائب چیئرمین آل پاکستان جیمز اینڈ جویلرز ایسوسی ایشن عبداللہ چاند کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں غیر یقینی حالات نے سونے کی طلب میں اضافہ کیا ہے. پاکستان میں بھی یہی رجحان دیکھنے کو ملا. پورے ورلڈ میں انسرٹینٹی ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیزی ہے اور جس سے لوکل پہ بھی امپیکٹ پڑ رہا ہے، اور دن بدن انٹرنیشنل جس طرح بڑھ رہا ہے اسی طرح لوکل گولڈ بھی بڑھ رہا ہے. اسی طرح جب پورے ورلڈ میں جو ہے وہ گولڈ کی ڈیمانڈ ہے تو ہمارے ملک میں بھی جو ہے ایکسپورٹ میں بھی ڈیمانڈ ہوئی ہے، اور ہماری جولری جو ہے اس میں بھی ایکسپورٹ میں بھی انکریز آئی ہے. اگر پچھلے سال کے مقابلے اس سال دیکھا جائے تو اس سال جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے ایکسپورٹ میں بھی. صرافہ بازار سے وابستہ ماہرین کے مطابق سونا ہمیشہ سے ایک محفوظ سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے، جبکہ امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی کشیدگی نے بھی عالمی سطح پر سونے کی طلب کو بڑھایا ہے. اشرف خان، سٹی 21.